and how to make your proper vision board. What is vision board? These pictures are magical pictures. How vision board works, like easy to use, सारी छोटी छोटी pictures लगा. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I am back after ages. Yes, after ages. So आपको thumbnail से आज पता चल गया होगा हम किस tool के बारे में बात करने वाले हैं. It's going to be all about vision board. Yes, that is my absolute favorite topic and I can talk about it literally throughout the day. So stay tuned till end because we are going to discuss a lot of things related to vision board and how does it work, what is vision board, and what mistakes you need to avoid while making vision board, and how to make your proper vision board. And in the end, I'm gonna share a pro tip. I'll make my vision board and how I usually put everything together while making my vision board. I'm going to share that with you all. So stay till and let's get started. So सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ विजन बोर्ड. एक्चुअल में ये है क्या और ये काम कैसे करता है. तो विजन बोर्ड एक कोलैज ऑफ पिक्चर्स है एंड दीज पिक्चर्स आर नॉट द नॉर्मल पिक्चर्स. दीज आर योर ड्रीम पिक्चर्स. दीज आर द थिंग्स you want to manifest in your life. These are some beautiful experiences that you are gonna like have in your life while you are manifesting your dreams. So these pictures are magical pictures, I would say. I call them magical pictures. You will make collage of all your dream pictures and you put that on a board or like किसी भी कवर्ड या जो भी कार्डबोर्ड वगैरह होता है आप उस पर लगा सकते हो. एंड this is how you are going to like set it all together and that is what is called vision board. So how does it work? Like out of curiosity I was like searching everything while I was like doing my vision board thing. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पे देखी एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के डिफरेंट बहुत पुराने इंटरव्यूज़ देखे, बहुत पुरानी वीडियोस देखी एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट मैं तो इस चीज़ को अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ. ये बहुत टाइम से लाइक मतलब हमारी सराउंडिंग्स में है. इस दुनिया में विजन बोर्ड बहुत पुरानी चीज़ है. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम. जो हम अब सीख रहे हैं वो पहले सब कुछ है, एग्जिस्ट करता है. ओप्रा विनफ्रे फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा और आप किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर लो, लिली सिंह. आई हैव सीन हर वीडियो ऑन विजन बोर्ड एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन हर यूट्यूब चैनल. विजन बोर्ड काम कैसे करता है? तो विजन बोर्ड जब आप किसी चीज़ को एक बोर्ड पे लगा रहे हो, लाइक आप अपनी ड्रीम पिक्चर्स को रोज़ देख रहे हो, उसको पेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपकी एक हैबिट है बैठ के उसको 5 मिनट्स देखना, उन चीज़ों के बारे में सोचना कि मैंने पिक्चर लगाई क्यों है, वॉट इज़ द मोटो बिहाइंड दैट पिक्चर. That is going to motivate you. You are going to visualize that, you are going to think that, and that's how new neural pathways are created in your brain because your brain can't differentiate the imagined experience and real experience. So somehow when you are visualizing those things, when you are looking at your vision boards, the new neural pathways are getting created in your brain in order to help you manifest those behavior, in order to help you manifest your dream, in order to help you manifest all those habits that's needed in order to manifest all these dream things in your life. So that's how vision board works. All in here, like I would always say, it is all about the mindset. It is all is going to be about your subconscious and conscious question that arises in your mind, how to make vision board. The first thing is vision board. बनाने से पहले आपको एक कॉपी पेन लेना है या फिर आप अपने फ़ोन के नोट्स में किसी भी चीज़ में लिख सकते हो. पहले बैठ के सोचो व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लिटरली वांट इन योर लाइफ. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल रिया ने कोई पिक्चर्स पेस्ट की है और रिया का गोल ये है कि रिया वांट्स टू डू दैट एंड आप आउट ऑफ जेलसी लाइक वो चीज़ करना चाहते हो टू पुट समवन डाउन और टू पुट समवन लाइक ऑन देयर एज. दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्थ इट एट ऑल. पहले शांति से हमें बैठ के सोचना है कि ओके मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ से. जब आप बैठोगे क्वेश्चन खुद से पूछोगे तब शायद एक दिन में आपको समझ आए, शायद 2 दिन में समझ आए, शायद 1 हफ्ते में समझ आए. Take your time. There is no rush to paste random pictures on your board. When I write down through my pen and on like that paper, I usually have lot of emotions
as compared to when I write down in notes, so which is like completely different to you. Like आपको क्या पता फ़ोन में लिखना ज़्यादा अच्छा लगे या फिर पेपर पेन, विच एवर मैथड यू प्रेफर. आप दो टाइप के विजन बोर्ड बना सकते हो, जो ऑफलाइन, लाइक ऑफलाइन इन द सेंस आप अपना कार्डबोर्ड ले रहे हो, उस पर पिक्चर्स लगा रहे हो. सेकेंड इज़ लाइक वर्चुअल, आप वर्चुअल बोर्ड बना रहे हो, पिक्चर सारी सेम है, वर्चुअल बन गया है, आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो, आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो. इट इज़ प्रीटी मच एज एक्सेसिबल एज योर द नॉर्मल विजन बोर्ड. आई फाइंड द फर्स्ट विजन बोर्ड लाइक जो कवर लाइक कार्डबोर्ड वाला है, मैं उसको बार बार कवर्ड क्यों बोल रही हूँ, कार्डबोर्ड वाला जो विजन बोर्ड है लाइक विच इज़ रॉ ऑथेंटिक, और उस पर मतलब बहुत जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं अपने हाथों से, आई फाइंड दैट मोर रॉ, मोर ऑथेंटिक एंड मोर यू. लाइक इट इज़ लिटरली समथिंग आई विल डू फ्रॉम माई होल हार्ट. अब जब आपने पेन पेपर लेके लिख लिया है कि ठीक है मेरे को ये सारी चीज़ें लाइफ में चाहिए, नीड टू डिवाइड एवरीथिंग इन द कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर लाइक जो भी है करियर, कुछ भी है, आप इन चीज़ों को डिवाइड करो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. फिर पर्सनल में आपके क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो पर्सनल लेवल पे, आप मेंटली क्या अचीव करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मेडिटेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सको, फालतू की ओवर थिंकिंग ना करो. थर्ड कि आपका करियर में आप यूट्यूब करना चाहते हो, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है कि मेरा करियर वाली कैटेगरी में स्लैश टीचिंग स्लैश यूट्यूब और वॉट एवर इज़ योर गोल. फिर आप जाते हो स्पिरिचुअल में, आप किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो, यू आर मोर इनटू पॉजिटिविटी, यू आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, आप उसमें लिखोगे. फॉर एग्जांपल आप कोई टेम्पल विजिट करना चाहते हो, सो आप उस टेम्पल को कैटेगराइज करोगे कि ठीक है स्पिरिचुअलिटी में हमने कॉलम बना के टेम्पल को ऐड कर दिया. फिर आता है आपका कि ट्रैवलिंग का कोई गोल है, लाइक आप इस जगह ट्रैवल करना चाहते हो, आप पेरिस ट्रैवल करना चाहते हो, या आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हो, आप उसको भी लिखोगे. पेरिस, रोम, टर्की, वॉट एवर, लाइक कुछ भी हो सकता है. वो इंडिया का हरिद्वार भी हो सकता है अगर वो आपके ट्रैवलिंग गोल में है. आपका गंगा आरती देखना अगर आपके ट्रैवलिंग गोल में है, तो गंगा आरती जस्ट राइट इट डाउन. फिर उसमें मिनी चीज़ें लिखते रहोगे, उसके अंदर गोल्स लिखते रहोगे, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएंगी ओवरऑल आपको समझने के लिए, अपने माइंडसेट को समझने के लिए. और उसके पीछे एक इंटेंशन होनी चाहिए कि ये इंटेंशन है क्यों. कभी कभी होता है ऐसा कि लाइक ये मेरा मन है, ये मैं करना चाहती हूँ, दिस इज़ इंटेंशन. ये नहीं कि ओके वो रिया, आई डोंट नो व्हाई आई एम प्रोनाउंसिंग रिया अगेन एंड अगेन, आई हैव नो वन रिलेटेड टू रिया, इट्स जस्ट अ रैंडम नेम दैट केम इन माई माइंड, कीपिंग दैट aside. So for example, Ria is traveling to Paris, so I want to go Paris. Even if you don't have any intention to see what is the culture of Paris, क्या कैसे क्या रहते हैं, घूमना कुछ नहीं है मन आपका, वो गई थी तो मैं भी जाऊंगी. ओके उसने वो खरीदा था एंड उसने वैसे स्टिक ऑन नेल्स लगवाए तो मेरे को भी वैसे ही कराना है. इंटेंशन क्या है आपकी, अपनी इंडिविजुअल इंटेंशन क्या है उन गोल्स के पीछे. इनफैक्ट आप उसको कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दोगे ना. और अगर आप वो आउट ऑफ जेलिसी लिख रहे हो, आउट ऑफ लाइक किसी को नीचा दिखाने के लिए लिख रहे हो, किस अगर उसके पीछे आपकी इंटेंशन साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है, तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है. गॉड ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है तो मैं इसको पेस्ट करती हूँ. हाँ आईफिल टावर को भी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ, क्या पता चली जाऊँ, क्या पता ये मैनिफेस्ट हो जाए. नहीं ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होने वाला जब उसके पीछे इंटेंशन नहीं है. फैसिनेशन के चक्कर में आप उस पिक्चर को लगा रहे हो एंड किसी को देख लिया कि यार यहाँ पे कितने मज़े आते होंगे ना, यार मेरे को भी जाना है, ये पिक्चर अपने विजन बोर्ड पे लगा देती हूँ, शायद मैनिफेस्ट हो जाए. लाइक सीरियसली आप किसी को लाइक आपने शॉर्ट टर्म फैसिनेशन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करके वो पिक्चर पे कोई और अच्छी पिक्चर्स लग सकती थी, कोई और बड़ी चीज़ इंटेंशनल चीज़ लग सकती थी, जो आपने फालतू की किसी की इंस्टाग्राम पिक्चर्स देख के वहाँ पे पेस्ट किया है. आप कहीं से भी इंस्पिरेशन लेके वो पिक्चर्स लगा सकते हो, बट वो आपको रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि आपने उस कैटेगरी से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई हैं. फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल कैटेगरी में था जिम, तो जिम में मशीन्स की पिक्चर नहीं लगानी है आपने. मशीन मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते हम. कैसा बॉडी है आपका, कैसा बॉडी टाइप है, आप क्या बॉडी गोल्स है, लाइक स्लिम वेस्ट एंड चेस्ट, लाइक क्या क्या गोल्स हैं. कि आप शोल्डर मसल्स की लगा रहे हो कि मेरे को ये शोल्डर मसल्स पे वर्क करना है, या ओवरऑल आप किसी अच्छी बॉडी इमेज लगा रहे हो जिसका मतलब जैसा फिगर आपको चाहिए आप वो लगा रहे हो. दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी
मोर ऑथेंटिक एज कम्पेयर टू मशीन। मेडिटेट करते हुए खुद की पिक्चर लगा सकते हो। बेशक आज आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, पर वो पिक्चर आप लगा सकते हो। एक बार बैठ के भी क्लिक कर लिया आपने मेडिटेट करते हुए, इट शुड बी इट इज यू नीडेड टू बी अवॉइड वाइल मेकिंग विजन बोर्ड। सबसे पहला आई वुड से दिस इज वॉट आई हैव सीन द मोस्ट एस्थेटिक। लोग आउट ऑफ फैसिनेशन इतनी पिक्चर्स लगा देते हैं, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ विजन बोर्ड जो पिक्चर्स ऑथेंटिक भी नहीं होती। किसी ने कहीं की पिक्चर लगा रखी है, अरे ये भी लगा देती हूँ, ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। अरे टर्की की पिक्चर लगा देती हूँ, मैनिफेस्ट हो जाएगी। दिल है, आप जेन्युइनली जाना चाहते हो वहाँ, आपका विजन बोर्ड एस्थेटिक नहीं होना चाहिए। आपका विजन बोर्ड कितना भी मैसी हो सकता है, पर इट शुड बी वेरी इंडिविजुअल और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आउट ऑफ फैसिनेशन प्लीज़ पिक्चर्स मत लगाओ। बाद में कोई आके कमेंट करेगा कि ये सब तो मैनिफेस्ट नहीं होता, ये सब डेलालू में रहते हैं। जब पिक्चर्स ही ढंग की नहीं लगाई तो भाई कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है, आपका जो भी विजन बोर्ड होगा, आपका जो भी गोल्स हैं वो बहुत इंडिविजुअल पर्सनल होने चाहिए, विच आई हैव सेड अ लॉट। आप समझ सकते हो मैं इस चीज़ पे कितना इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आप बहुत बड़ा सोच सकते हो, बहुत कुछ सोच सकते हो और पिक्चर्स लगाओ, उसको जितना मैसी करना है विजन बोर्ड को करो, पर इन स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपके बारे में होनी चाहिए, किसी और के बारे में नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ कॉपी नहीं लगाना कुछ भी। थर्ड, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो भी विजन बोर्ड बनाते हो थोड़ा शॉर्ट टर्म विजन बोर्ड, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म गोल्स वाला विजन बोर्ड होना चाहिए, जो 1 ईयर या 6 मंथ्स या 2 ईयर्स में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। 5 साल बाद की आपने पिक्चर लगा रखी कि एलए में मेरा बीच साइड पे हाउस होगा, हम अपना खुद का घर लेंगे, और अमेरिका में होगा। 5 साल बाद की आपने पिक्चर लगा दी, वो आप लैम्बो की पिक्चर आज लगा रहे हो, मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है आने वाले 5 साल तक, और हो भी गई विद इन 1 ईयर। तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें होनी चाहिए कि और कौन सी इंटेंशन और कैटेगरी आपको विजन बोर्ड पे लगानी है जो आपको हेल्प करेंगी वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में भी। सो ऐसे गोल्स लगाओ विच इज़ लाइक मोर से लाइक शॉर्ट टर्म, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर। आप 5 ईयर्स वाली पिक्चर भी लगा के छोड़ सकते हो, पर उससे क्या होता है आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने बीच हाउस की पिक्चर लगाई, वो अभी तक मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुई, कहाँ से होगी। बीच हाउस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल और आप उसको लगा सकते हो, फिर आपका उसकी वजह से डीमोटिवेशन हो जाएगा कि यार जो चीज़ें मैंने लगाई वो मैनिफेस्ट तो हो नहीं रही, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, सब डेलालू कर रहे हैं, ये बकवास करते रहते हैं। जो जिसका जो अचीव कर लेता है वो ज्ञान देने आ जाता है। नहीं भाई, ज्ञान देने नहीं आ रहे। तुम्हारा विजन बोर्ड उतना ऑथेंटिक था ही नहीं, उतना स्पेसिफिक था ही नहीं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। पहले तुम उस लेवल तक तो पहुँचो जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म विजन बोर्ड बनाओगे उसका फ़ायदा ये होता है, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 ईयर तक का बना लो, हर ईयर न्यू विजन बोर्ड बना सकते हो आप। हर महीने बंदे के गोल्स बदलते हैं, हर दिन बंदे का माइंडसेट बदलता है। आप 5 साल बाद की पिक अभी कैसे लगा सकते हो, और मे बी यू आर दैट मच क्लियर विद योर माइंड सेट। हाउएवर आई एम वेरी लाइक शॉर्ट टर्म गोल पर्सन, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म विजन बोर्ड मेरे को और हेल्प करता है कि ठीक है अब मैंने ये अचीव कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो माइंडसेट डेवलप होता है कि ठीक है मैं ये अचीव कर लिया है और मैं वो अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि ये चीज़ जो अभी मैंने शॉर्ट टर्म में मैनिफेस्ट की है, ये मेरे को और मेरे को और मोटिवेशन देगा बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है मैं अब 5 साल बाद की लाइक लैम्बोर्गिनी की पिक्चर लगा दी है, आई नो मैं उस लेवल का हार्डवर्क कर ही नहीं रही कि वो अब मैनिफेस्ट होगी। मे बी 5 साल बाद हो जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं मेरे को डीमोटिवेट करती रहेगी, ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ये मैनिफेस्ट बैठे बैठे मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपने जिम की पिक्चर्स लगा दी हैं और फिर आप एक्सरसाइज करने जा नहीं रहे हो, दिन भर इंस्टाग्राम पे बड़ा पाव की रील स्क्रॉल करके बड़ा पाव ही खाते हो, तो कहाँ से स्लिम वेस्ट होगी। फूफा जी एक्सरसाइज करने नहीं जाएंगे, आपको ही एक्सरसाइज करने जाना पड़ेगा। टाइम के गोल्स हैं वो लगाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, मैं ये कर रही हूँ, तो फिर आपका दिल होता है, मोटिवेट होते हो आप और बड़े गोल्स लगाने के लिए, फिर आप उसके लिए और बड़ी मेहनत करोगे और चीज़ें डेवलप करोगे अपने अंदर। पर अगर आप अभी से ही लाइक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स लगा देते हो, आई थिंक दिस इज लाइक गोइंग टू डीमोटिवेट यू इन द लॉन्ग रन। However, short-term vision board, which is like every year you are making, is going to help you motivate, bring that confidence in you in order to help manifest all other bigger goals in your life. Before like I end this video, I wanted to show you something like how I am going to manifest or how I am going to like put my things on the vision board in order to manifest everything. तो अपना real vision board नहीं दिखाऊंगी because I am very
like superstitious person when it comes to evil eye. So I have my other like the frame that I have got it, and मैं उसको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी pictures लगा सकते हैं. Let me bring that in. This is what I have got. So it is like easy to use frame. However, this is how it looks. आप किसी भी कार्डबोर्ड पे बना सकते हो अपना विजन बोर्ड. ये मैंने अपने न्यू विजन बोर्ड के लिए ख़रीदा है. आईफिल टावर, अगर मैं यहाँ जाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ की पिक्चर लगाई है. एंड आप कहीं की भी लगा सकते हो. न्यूयॉर्क की पिक्चर है, यहाँ लंदन की पिक्चर है. करेंटली आई एम लिविंग हियर. एनीवेज, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स लगा सकते हो. एंड ये कितना भी मैसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये ऐसे एस्थेटिक सा नहीं होना चाहिए जैसे अभी बना हुआ है कि 5 पिक्चर्स लगा दी इतनी एस्थेटिक बनने के चक्कर में. दिस इज माई विजन बोर्ड. नो, दैट इज नॉट योर विजन बोर्ड, दैट इज जस्ट अ लिटिल फैसिनेशन. तो मैंने पर्सनल कैटेगरी यहाँ रखी है, तो यहाँ पे पर्सनल कैटेगरीज की पिक्चर लगा दी. आप यहाँ पे भी पर्सनल की लगा सकते हो, यहाँ कहीं पे भी आप कोई सी भी पिक्चर्स लगा सकते हो. आपका विजन बोर्ड कितना भी मैसी हो पर इंडिविजुअल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने विजन बोर्ड पे मैंने पेरिस की पिक्चर चिपका दी तो पेरिस में परसों चली जाऊंगी और 1 साल में चली जाऊंगी. नहीं, पेरिस जाने के लिए मेरे को क्या क्या करना है मेरे अंदर. अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो मेरे को वो चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी. वीज़ा अप्लाई कर दिए, बाकी चीज़ आप अपनी साइड से जब चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लोगे, जब आप सुबह उठ के इस विजन बोर्ड को देखोगे. फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठ के यहाँ पेरिस की पिक्चर देख रही हूँ सुबह सुबह, तो मुझे कहीं ना कहीं याद आएगा ओके कि मेरे को इसके लिए वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे को इसके लिए सेविंग्स करनी है अगर मुझे जाना है. एंड मेरे को क्या आउटफिट्स पहनने हैं विच इज़ वेरी रैंडम, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. और इसके लिए क्या क्या बिहेवियर है, इसके लिए क्या क्या हैबिट है जो मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि मैं पेरिस जा पाऊँ. जब आप अपनी साइड से एफर्ट लगाओगे तभी यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा. भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं. ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है LV के बैग की एंड आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो. 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए 3.5 लाख का बैग कमाने के लिए उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी. आप विजन बोर्ड विल हेल्प यू विजुअलाइज दोज गोल्स, will help you create that neural pathways, but eventually you have to create behavior habits, those patterns in order to manifest your dream life. अगर हर नॉर्मल बंदे को ऐसे ही घर बैठे सब कुछ मिल जाता पिक्चर्स चिपकाने से, तो आई थिंक आज दुनिया में सबके पास सब कुछ होता और वो खाली पिक्चर्स चिपकाते शाकाला का बुम बुम की पेंसिल की तरह वो बाहर आ जाता. ऐसा नहीं हो सकता गाइस. शाकाला का बुम बुम जैसी कोई पेंसिल एग्जिस्ट नहीं करती है और ना ही ऐसा कोई चीज़ है कि आप चिपकाने से वो लैम्बो आपके सामने आ जाएगी. अगर ऐसा होता तो आई थिंक मेरे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसी मेरा ही विजन बोर्ड लगने वाला है. होप अगर ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो अच्छे से करने की. और अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो प्लीज़ एंड तक देख लेना बिकॉज इट इज़ रियली वर्थ इट. और अपने ड्रीम्स के लिए इतना एफर्ट्स तो कर ही सकते हो. तो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.